वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मतलब फाइनेंशियली मार्केट्स में यूजली स्टूडेंट का इंटरेस्ट कम रहता है कंपैरेटिवली बट डोंट यू थिंक सो एआई इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद फाइनेंशियल मार्केट्स सो फार? सर एआई कनेक्टेड है फाइनेंशियल मार्केट से, लेकिन वो एक ब्रॉडर लेवल पे कनेक्टेड है। जैसे कि मैं बोलूँ तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और एचएनआईज एआई से अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। Have you studied any data around it कि आज भी इंडिया में ऐसा कितना कहाँ तक पहुँच पाया है सैनिटरी पैड का यूजेस और ऐसा कुछ स्टडी किया आपने? तो जब मैं एडवर्टीजमेंट देखती थी सैनिटरी नैपकिन्स की, लाइक देयर आर कंपनीज, तो वो ब्लू पानी डाल के दिखाते थे। कॉरपोरेट्स ने अब उसको रेड करके दिखाया है। सो और अब इंडिया बहुत खुल के बात करने लगा है, जैसे कि टॉयलेट जैसी मूवीज़ आ रही हैं, पैडमैन जैसी मूवीज़ आ रही हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। Have a seat. थैंक यू सर। So दीक्षा, यस सर। how are you? आई एम गुड सर। और कैसी रही अभी अभी तक की आपकी जर्नी? अभी तक सब अच्छा जा रहा था। यूजीसी नेट क्लियर करके अच्छा लग रहा है। करियर बहुत ब्लर सा दिख रहा था, विजन क्लियर हो रहा है और जो सोचा था शायद अब पा लूँगी ऐसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। Great, great, great. Diksha, tell something about yourself first. आई एम दीक्षा एंड आई एम फ्रॉम भिवानी विच इज़ ऑल्सो नोन एज छोटी काशी, Okay. क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पल्स हैं लॉर्ड शिवा के। एंड दिस इज़ इन हरियाणा। I have completed my schooling from CBSE board with a 9.8 CGPA in 10th class and 86.4 percentage in 12th class. And then I've started pursuing my graduation from University of Delhi. And in my school days, I was so many active in extracurricular activities. So I have participated in English debate competitions. And at state level, I have also won the first prize. And then in science drama I had played a lead role, and in that we had also won first prize at district level. Later on I've started pursuing my masters in commerce from Delhi School of Economics, and with a 7.3 CGPA so far, as I was so much inclined towards teaching and I love teaching, and I also wanted to explore about research, so I've started pursuing my masters. Also I'm having experience in teaching. I had taught 11th and 12th class while I was doing my first year of masters. That was a great experience, and I'm also a content creator at YouTube. So Okay, so that means you're a multitasker. yeah. It's my interests are varied and versatile, and I want to gain experience in life. Okay. You are from Bhiwani. Yes sir. So Choti Kashi. Yeah, Okay. So how many temples have you visited? around 300, and it was so 300. yeah. Okay. It is And still some are pending. yes, obviously, because in India there are so many temples at every gully and nukkar, but it is Choti Kashi because people are in Haryana. You must have heard Jai Baba की बोलते हैं, तो it's मतलब बाबा की is शिव जी, और लोग बहुत inclined है towards शिवा in हरियाणा। and also हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो फिर वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं लॉर्ड शिवा के, तो उसको छोटी काशी बोलते हैं। काफ़ी अच्छा शहर है, आप आना कभी। Great, 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 great. And you have also participated in one of the project Rakin Kurloop Nivani NGO. Yeah, it's a Girl Up Nivani NGO, yes. So what have you done there? So it's a Raktim project in which the people who are, I mean, women have a menstrual cycle, and they have this issue. So there are so many section of the society, because in India there's a large gap. Richer are richer and the poor are poorer. So the basic things some sections of the society, they don't know about the basic necessities of life, and they are still using, बोलते हैं ना, cotton का कपड़ा, which is also not cotton. तो उन सब महिलाओं को हम सैनिटरी नैपकिन्स को का डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे, और उनको नुक्कड़ नाटक के थ्रू और अपनी बातों के थ्रू मोटिवेट करने गए थे, और उनको ये अवेयरनेस देने गए थे कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू यूज़ अ सैनिटरी नैपकिन एंड हाउ इट कैन बी इन्फेक्शियस टू एंड उनको प्रॉपर नॉलेज देने गए थे हाउ द साइकिल वर्क्स। As we have already, studied commerce subject, economic subject, have you studied any data around it कि आज भी इंडिया में ऐसा कितनी कहाँ तक पहुँच पाया है सैनिटरी पैड का यूजेजेस और ऐसा कुछ स्टडी किया आपने? Sir, I want to point out about the advertisement.
initially when I was in 6th class, when I did not know about menstruation and things, तो जब मैं एडवर्टीजमेंट देखती थी सैनिटरी नैपकिन्स की, लाइक देर आर कंपनीज, तो वो ब्लू पानी डाल के दिखाते थे, विच इज़ कि मतलब लोग अवेयर होना ही नहीं चाह रहे हैं. कॉरपोरेट्स ने अब उसको रेड करके दिखाया है, सो दैट लोगों को, हमें लगता था वो शायद स्वेटिंग के लिए है, मतलब वो अवेयरनेस भी उन्हीं तक ही जा पा रही थी जो एक्चुअली एजुकेटेड है और उनको पता है सैनिटरी नैपकिन क्या होते हैं. उनको तो ऑलरेडी पता है. जिन लोगों को नहीं पता वो ब्लू पानी से समझ ही नहीं रहे थे. और अब इंडिया बहुत खुल के बात करने लगा है, जैसे कि टॉयलेट जैसी मूवीज आ रही हैं, पैडमैन जैसी मूवीज आ रही हैं. तो Good. That means you are aware about all these issues also, right? यस सर. Good. And here that content creator and blogger on YouTube. So Yeah. what kind of content creator? Actually, I'm like very social person, so I thought why not YouTube too. So I just share my views on YouTube. Like my mother had got cancer, so at that stage of my life I had felt hopeless. So I know how had I gathered myself, और उस सबको इकट्ठा करके मैं कैसे वापस से खड़ी हुई हूँ. तो मुझे लगता है कि वो एक अलग जर्नी थी और मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, विच आई always want to share with people. So I've started with the YouTube journey. I had मतलब मैंने कैमरा लिया और लोगों से बात करना शुरू किया कि मेरी जर्नी कैसी रही. और ऑल्सो आई एम ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन स्किन केयर एंड मेकअप. कौन सी लड़की नहीं होती, तो उसके रिव्यूज़ भी मैं समटाइम्स डाल देती हूँ यूट्यूब पे. ओके, सो दीक्षा आते हैं आपके टेक्निकल रिसर्च के लिए. Yes, sir. सो सबसे पहले एक बार टॉपिक पे बात कर लेते हैं. आपका कॉमर्स में काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, तो सबसे मेन आपका जो मेन टाइटल है, आपका जो टॉपिक है पीएचडी का, वो क्या रहने वाला? सर एक्चुअली मैं परस्यू कर रही हूँ मास्टर्स अभी. तो मेरा रिसर्च का टॉपिक, मेरे को 2 सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो अभी तक जैसे एआई मार्केट में बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो आई वाज सर्चिंग अबाउट एआई एंड हाउ कैन वी कनेक्ट एआई टू द फाइनेंस as a subject. So then finance as a subject is a broad term, and then it has varieties. So I had thought ki why not AI in financial market. So I'm still exploring and still searching into research, but AI in financial market would be one of the topic in which I would like to research on. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. मतलब फाइनेंशियली मार्केट्स में यूजली स्टूडेंट का इंटरेस्ट कम रहता है कंपैरेटिवली, बट डोंट यू थिंक सो एआई इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद फाइनेंशियल मार्केट सो फार? सर एआई कनेक्टेड है फाइनेंशियल मार्केट से, लेकिन वो एक ब्रॉडर लेवल पे कनेक्टेड है. जैसे कि मैं बोलूँ तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और एचएनआईज एआई से अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं, वो अपने फेवर में यूज़ कर रहे हैं. लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि हम हो गए, आप लोग हो गए, तो जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को अभी तक भी एआई का यूज़ नहीं करना आया. चैट जीपीटी एंड चैटबॉट इज समथिंग वी आर यूज्ड टू ऑफ समथिंग, बट artificial intelligence in knowing the stock, in knowing the finances of a company, and then getting कि ये तुम्हारे लॉस मेकिंग डील होगी या प्रॉफिट मेकिंग डील होगी, ये क्रैक करना आई गेस अभी भी मार्केट में नहीं आया. एंड वी कैन एक्सप्लोर इनटू द टॉपिक. सो यू आर पर्टिकुलरली टारगेटिंग कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बेसिकली एआई का यूज़ करे. सो इसके पीछे मतलब यू वांट कि कितने लोग करना चाहते हैं, या वांट कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जुड़ पाए, या फिर ऐसे ऑलरेडी हमारे पास प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से हम जुड़ सकते हैं? सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग? एज फार एज आई नो, अभी उतने प्लेटफॉर्म्स, एआई बहुत ब्रॉडर लेवल पे है, वो बहुत टेक्नोलॉजिकली और फिनेंशियली अफोर्डेबल नहीं है. तो मुझे लगता है कि अभी रिटेलर्स के पास उतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं कि वो अपने प्रॉफिट को एस्टिमेट कर पाए विद द हेल्प ऑफ एआई. So number of investors who will be really interested in that, I think would not be a problem, because everybody is interested in AI, and India as a capitalist economy has to adopt AI one day or the other. But I am more into how I can make, or we collectively can make beneficial to it. I need to explore into that. बट आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर की प्रॉब्लम ये है कि उसको कैलकुलेट ही नहीं करना प्रॉफिट कितना है, उसे रीड ही नहीं करना कि एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा. तो जैसे कि यहाँ पर आप हो सकता है एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, या रिटेल इन्वेस्टर के अंदर वो पेशेंस ही ना हो.
सो आपको लगता है कि एआई आने के बाद अब आज के टाइम पे मेजरली जो लॉसेस हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स की हैं, तो आपको लगता है कि एआई आने के बाद जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इतना एजुकेट हो जाएगा और वो एक पेशेंस के साथ अपना जो है वो डेफिनेटली इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करेगा? आई वॉन्ट टू से कि आपने खुद ही बोल दिया कि रिटेलर्स तो उतना देखना ही नहीं चाहते फाइनेंसेस को, वो देखना ही नहीं चाहते कि वो कंपनी इतनी प्रॉफिट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, क्योंकि एजुकेशन का स्प्रेड ही इस हिसाब से है इंडिया में। तभी तो जब एआई आएगा तो एआई इज़ बेसिकली मेकिंग यू मोर कंफर्टेबल, और तुम्हें काम ही कम करना पड़े, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालो एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। सो आई गेस भारत के लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। आपने कभी इस बात पे डेटा कलेक्ट करा कि यूएस में कितने लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं और इंडिया में कितने लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं? सर ऐसे कभी डेटा तो कलेक्ट नहीं करा, बट नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स लाइक इक्विटी में शायद से यूएस में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, बट आईपीओज में तो हमारी ही सिटी के बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो जहाँ पे शॉर्ट प्रॉफिट है, बिकॉज इंडिया की ऐसी मेंटालिटी है कि वो रिस्क अवर्स हैं, वो उतना रिस्क नहीं लेना चाहते। सो मेरे को ऐसे पर्टिकुलर तो नहीं पता, बट आई एम श्योर कि इक्विटी में शायद अमेरिका ज़्यादा हो सकता है, बट जहाँ पे शॉर्ट रिटर्न है वहाँ पे हम लोग ही। अमेरिका में अराउंड अगर टोटल पॉपुलेशन 75% तो इंडिया में 3% है, मतलब ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। बिकॉज इंडिया में वही ना, लोग रिस्क से बहुत ज़्यादा डरते हैं। So financial market, if we are dealing with, so you are focused about money market, capital market or both? सो मनी मार्केट इज समथिंग जो शॉर्ट टर्म के लिए है एंड कैपिटल मार्केट इज समथिंग जो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो आई एम थिंकिंग कि कैपिटल मार्केट में हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एआई को, मतलब लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके। So कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी जानकारी है आपको कैपिटल मार्केट में? इक्विटी, डिबेंचर्स, फ्यूचर ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स। So your AI specifically research is going to be into equity or in all the instruments? So, I have read about this. The portfolio must be diverse. So, why not? I'm still thinking how the direction is going to be, but I don't want to make my research as rigid to equity, because the portfolio of people will be diverse. So, it won't be beneficial if the AI in equity if I'll be targeting. ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू दीक्षा, थैंक यू सो मच। Thank you. सर, Hi Diksha, how are you? So I'm good. What about you? I was hearing about you and it was a really interesting journey of yours. If we talk about your studies, if we talk about your extracurricular activities, that is really phenomenal. So many congratulations for that. Thank you. So I really want to know about your research methodology. Tell me something about the research methods that you will follow in. So particularly talking about what method I would like to follow in future, because it is a finance based research. So in finance we basically and mostly use quantitative methods of research, but what had I got to know about research and the things that only one method is not sufficient. We got to apply both of the methods, because when we personally talk to the people and will अंडरस्टैंड लिखेंगे कि उनको क्या चाहिए, तो ये क्वालिटेटिव की साइड जाएगा, तो इट कैन नॉट बी ओनली क्वांटिटेटिव एंड ओनली क्वालिटेटिव, सो माय मेथड विल बी मिक्स्ड। So Diksha, very good. So what about, is there any conferences that you have attended, like national or an international conference, and what is that outcome from that conference that you got? Yes, sir. So I had got an opportunity to attend this conference called Governance in Amrit Kal. हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से ही था, दीनदयाल उपाध्याय में कॉन्फ्रेंस अटेंड हुई थी। इट्स अबाउट अमृत काल जो हम 2047 में टारगेट कर रहे हैं, इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन, एंड द गवर्नेंस इन दिस टॉपिक वुड बी कि कैसे इंडिया अपनी गवर्नमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग करे और इंडिया की गवर्नेंस इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि हम उस टारगेट को अचीव कर पाए। बेसिकली ये रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा था कि इंडिया कैसे रिसर्च के अंदर इन्वेस्ट करे, ताकि हम नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करके रिसर्च करके हमारे नेशन को, लाइक हम एक नेशन डेवलप नेशन तभी बनेंगे ना जब हम स्टार्टअप्स करेंगे, नई नई चीज़ें होंगी, और नई चीज़ें इज इक्वल्स टू रिसर्चिंग। So very well done about the research methods and the conferences that you have attended. I have one more question.
what is your motivation for that higher research thing? So, because I am in the Delhi School of Economics, so professors are so very good when they tell us about the journey of their research. So, when we get to know how are they researching, और अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आपको एक उसी सब्जेक्ट के अंदर एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, सो वो अपनी जर्नी इस हिसाब से बताते हैं, तो हमारा विजन ऐसे दिखने लगता है कि वाओ, हम भी कुछ इस फील्ड, इस एरिया में रिसर्च करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट इट, वी विल मेक समथिंग न्यू, जो कि सबके लिए, मतलब शायद हम कुछ नया भी ऐसा निकाल सकते हैं. So in research methodology, you are talking about the quantitative as well as the qualitative methodologies. Yeah. In conferences, you have attended one conference that totally given to the research thing, right? And Yes. the next thing is motivation for higher research is your faculties of Yes, Delhi sir. School of Economics. Last but not the least, one last question from my side, that PhD, you will pursue PhD, and when you are doing PhD, how will you see yourself as the long-term career growth in terms of PhD thing? So PhD is a journey, it's a long journey, and after I'll research about something, I'll start my research on something else. So while doing PhD, if you are proficient in that subject, you can also, by qualifying UGC NET, I am eligible for assistant professor too. So assistant professor is a promising job. So I'm looking forward to become a teacher, because I am very much into teaching. So I'll get to teach and I'll get to research. So it's a win-win. Situation. Right? Yes. Very well done, Diksha. All the best for your future endeavors. Over to you, Tripti ma'am. Okay, sir. So, Diksha, hi. I see that you have taught 11th and 12th grades. Yes, ma'am. So under PhD, if and when you pursue PhD, so आपको you'll have to take some subjects for the postgrad students also. So how will you cater your 11th and 12th class teaching to the post-graduation students while you're pursuing your full-time PhD? I guess in commerce the base is 11th and 12th, and then जैसे अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया. बिजनेस स्टडीज़ का itself 11th में या 12th में एक टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और यही सब हम बेसिक्स को जानेंगे, और उस बेसिक्स क्लियर होने के बाद हम जब ग्रैड को और पोस्ट ग्रैड को केटर करेंगे, तो ज़ीरो से लेके आई गेस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ, एंड फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को, एंड थ्रू 11th and 12th आई एम गेटिंग टू नो कि मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट किस चीज़ में, व्हेन आई एम टीचिंग देम, व्हेन दे आर टेलिंग मी देयर क्वेरीज. सो but obviously teaching 11th and 12th is so very different जो पोस्ट ग्रेड के बच्चे को पढ़ाना होता है, बट यू नो लेवल से ही सीखना आएगा ना. पोस्ट ग्रेड का बच्चा ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा हुआ होता है, वो एक्सप्लोर करने के लिए आता है, उसको टीचर नहीं एक गाइड की ज़रूरत होती है, ताकि उसको कुछ टॉपिक का हिंट दे दे और फिर वो सर्च करके आएगा जाके, और देन द पर्सन विल कम एंड आस्क यू क्वेश्चंस. Okay, so another question from this. Let's say कि if a student in your class is situation ना, बहुत ही simple situation है कि let's say if he or she loses interest ना, like होता है कभी कभी बच्चे टॉपिक्स के बीच में थोड़ा बोर होने लग जाते हैं sort of. So what will be your strategy to make the topic interesting, या आप कैसे उसका वापस से ध्यान you will bring up towards your teaching की like this we'll focus on this topic only, क्या आपकी strategy रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल इन कॉलेज टीचिंग आई हैव सीन DU तो PPT प्रोवाइड करने का ऑप्शन देता है, बट देर आर सो मेनी कॉलेजेस जहाँ पे ब्लैक बोर्ड ही यूज़ करना होता है. वैसे तो बहुत सिंपल ही होता है लोगों के फेसेस से पता करना कि वो बोर हो रहे हैं या फिर उनको इंटरेस्ट आ रहा है सब्जेक्ट में. और हर एक टीचर ना रात से और थोड़े एक दिन पहले से प्रिपेयर करके आता है कि मुझे ये पढ़ाना है और ऐसे ऐसे पढ़ाना है. तो अगर पढ़ाते पढ़ाते कभी लगा कि किसी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा या फिर वो बोरियत फील कर रहे हैं, आई कैन इंक्लूड द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इनटू दैट टॉपिक, और जहाँ पे उनका इंटरेस्ट इंक्लाइन कर रहा है, वेयर दे आर इंक्लाइनिंग व्हाट दे वांट टू बी, उनको वैसा एग्जाम्पल देके उनका दिमाग वहाँ से लाके आई विल स्टार्ट टीचिंग. Okay, so this last question from my side कि आपने कहा था कि qualitative और quantitative दोनों methods will be using in research. So कोई sampling method आपने सोचा है data collection के लिए? When I was thinking about the research, सैम्पलिंग मेथड पर्टिकुलरली मैंने नहीं सोचा है डेटा कलेक्शन के लिए, बट personalized interaction I am thinking like it's just the basic stage. Later on I'll get to know the various sampling methods.
and the statistical tools we used in research. But अभी के लिए मैं बस एक personalized one-on-one. Okay, understood. Okay, Diksha, that's it from my side, sir. Over to you. ओके दीक्षा, आई थिंक आपने बहुत ही क्लैरिटी के साथ और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपने जो है इसके जवाब दिए. Thank you. एंड वन थिंग मोर आई वांट टू से कि आपने जितनी भी टेक्निकल क्वेश्चंस थे जो सर ने आपसे पूछे, आई थिंक काफ़ी आपने बखूबी उसका आंसर दिया. दो पॉइंटर्स हैं जिस पे आप वर्क कर सकते हैं. एक Yes. थोड़ा सा डाटा ओरिएंटेड ज़्यादा हो सकते हैं आप, जैसे सर का क्वेश्चन डाटा रिलेटेड था, Yes, sir. बिकॉज आपकी फील्ड में ही सर ये पूरा डाटा बेस ही चलता है और डाटा सेट कलेक्शंस आगे आप परफॉर्म करेंगे. सो डाटा इज द की Yes, in sir. your area especially. And secondly, when you are answering to someone, you can make eye contact with everyone, right? आपसे एक person पूछ रहा है, but you can make contact with everyone. So that is a positive thing आप में लाएगा. Rest, I think very well done. Thank and, you. I hope जो आपका aim है वो आप उसे achieve करें. Thank you so All much, the sir. All the best. Thank you so much.